टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत এবার পেশ করা হলো অনলাইন গেমিং বিল। অনলাइन गेमिंग बिल पेश করলো, লোকসভায় পেশ হয়ে গেল এবং ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল সেই বিল। এবং সেই বিলে একেবারে অনেক কিছুই লেখা রয়েছে, অনেক কিছুই রয়েছে সেই বিলে। একেবারে যেটা মূলত রয়েছে যে জরিমানাও রয়েছে। মূলত আমরা আমাদের শিশুদের শৈশব একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছি এই অনলাইন গেমিং। শুধু শিশুরা কেন, কলেজ বহু পড়ুয়ারা রয়েছে, স্কুল বহু পড়ুয়ারা রয়েছে, তারা পড়াশোনা কম, এই অনলাইন গেম নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। সেই কারণে বিভিন্ন অভিযোগও জমা পড়ছে। বিভিন্ন এই যে আমাদের শিশুদের শৈশব নষ্ট করে দিচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শৈশব নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে কেন্দ্র সরকার নড়ে চড়ে বসেছে। সেই নিয়ে বিল আনা হয়েছে কেন্দ্র সভায় এবং সংসদের নিম্নকক্ষ, সেটা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় সেই বিল পেশ করা হয়েছে। বুধবার সংসদে পেশ করা হলো প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং খসড়া আইন, ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল। এর লক্ষ্য হলো এই ধরনের জুয়ার খেলার মাধ্যমে মানুষের মনে নেশা ধরিয়ে দেওয়া, অর্থ তছরূপ এবং আর্থিক প্রতারণা বন্ধ করা। এদিন সকালে এই বিল পেশ করা হয়। বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সামান্য কিছু কথার মধ্য দিয়ে লোকসভায় পেশ হওয়া বিল নিয়ে বিরোধীরা তীব্র আপত্তি তোলেন। ধ্বনি ভোটে পাশ হওয়ার পরই লোকসভার দিনে মতো মুলতবি হয় এদিন। এই খসড়া আইনে অনলাইন গেমিংয়ের বিজ্ঞাপনে নিষেধাজ্ঞা জারির কথাও রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের বিখ্যাত অভিনেতা ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। এছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থাগুলিকে অর্থ হস্তান্তর বন্ধ করার বিধিও থাকছে। সমস্ত অনলাইন বেটিং এবং জুয়া খেলা বন্ধ করবে এই আইন। অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস থেকে অনলাইন জুয়া যেমন পোকার, রামি, অন্যান্য তাস খেলা, অনলাইন লটারি বেআইনি ঘোষিত হবে। এই পদক্ষেপে দেশের $380 কোটি গেমিং ব্যবসার পায়ে কুড়ুল পড়তে চলেছে বলে খবর। কারণ এই গেমিং ব্যবসার বিদেশে বিনিয়োগকারীদের টেনেছিল কাল্পনিক খেলার অ্যাপ যেমন ড্রিম 11 গেমস, 24x7 এবং মোবাইল প্রিমিয়ার লিগে বিদেশিরাও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিলে রয়েছে অনলাইন গেমিং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতে 3 বছর পর্যন্ত জেল ও $1 কোটি জরিমানা অথবা এই দুটোই হতে পারে। অর্থাৎ এই যে রামি সার্কেল আপনারা টিভিতে দেখেন, যেখানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে বিজ্ঞাপন দিতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন অনলাইন গেম দেখেন, তাস খেলা, এবং সম্প্রতি একটি গেমে প্রচুর অভিনেতাকে দেখা গিয়েছিল। সেই সমস্ত কিছু এবার বন্ধ হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত ব্যাংক জড়িত থাকছে এই আর্থিক লেনদেনে, তাদের এবার খেলা শেষ হয়ে গেল। তারা আর টাকার বিষয়টা চলে 370 কোটি টাকার যে গেমের ব্যবসা, সেই ব্যবসা কিন্তু একেবারে জলে ডুবে যেতে বসেছে। শুনবো অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি কি বলেছিলেন, লোকসভায় এই বিলটা পেশের সময় কি বলেছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব, সেটা শুনে নেব আমরা। इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है।
दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है, 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें।